Himalayas is the origin of rivers and streams which feeds approximately 40% of Earth's population. Yet the situation of safe drinking water in the region itself is increasingly becoming a huge cause of concern. To combat this issue, Himalay Seva Sangh, along with local communities and organizations, have undertaken many measures. One such measure is the slow sand filter. Many such slow sand filters have been constructed across the region. A slow sand filter is an innovation for cost-effectively making clean water available to the masses. The slow sand filter works without any external energy source, utilizing the gravitational gradient, and supplies potable drinking water to the masses at 6 liters per minute. This water is subsequently supplied to the village through the pipelines that is laid specifically for this purpose. One such slow sand filter has been recently built in Mukteshwar, Kumaon, Uttarakhand. एक फिल्टर का एक डेमो प्रोग्राम मुझे मिला, तो डेमो प्रोग्राम पहले मैंने संस्था के साथ समझना चाहा कि आखिर ये क्या है। मेरे पास एक टैंक है जो टैंक इस समय 46,000 लीटर पानी रिस्क करके 1.5 किलोमीटर दूर से इस टैंक पर आता है। काई से फिल्टर होने के बाद जो पानी लाभार्थी को मिलता है, उसमें कई रोगों का निदान है, जैसे पीलिया है और एसिडिटी है, गैस है। कितने परिवार लाभान्वित हैं? 15। Another area where many such slow sand filters have been constructed and are being successfully used by the local communities is the Inwal village of Tehri Garhwal, Uttarakhand. और जब हमको जानकारी मिली है, ये फिल्टर देखा है, हमने स्वयं अपना एक नया फिल्टर बनाया है, अपने स्रोत में बनाया है। और इस फिल्टर के आगे हमारा ये टैंक बना हुआ है। इस टैंक से मतलब हमारे पूरे यहाँ ग्राम पंचायत में 6 राजस्व ग्राम है, प्रत्येक गांव में इस फिल्टर से पानी सप्लाई कर दिया जाता है। हाँ, जैसे कि लंगड़ना में, तोक में हमने पहले वहाँ फिल्टर निर्माण का कार्य करा है। वहाँ से हमें पाइप द्वारा, स्रोत से पाइप द्वारा यहाँ फिल्टर तक पानी लाए हैं। और ये फिल्टर जो बना दिया गया है, इसमें नीचे ईंटें रखी हैं और इसमें फिर हमने गिट्टी भरी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर की परत में रेत डाला है, जिससे पानी एकदम स्वच्छ और छान के मतलब अच्छा पानी मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है। उसके आगे हमने फिल्टर से पाइपलाइन जोड़ी है टैंक तक, और टैंक से मतलब पूरे ग्राम सभाओं में, पूरे ग्रामों में ये पानी वितरण पाइप द्वारा कर दिया गया है। As stated by the Sarpanch, it's very encouraging that the local communities are taking initiative by themselves and constructing these slow sand filters. फायदा वही है उनका, गंदा पानी नहीं आता है, बीमार कम पड़ते हैं और स्वच्छ पानी मिलता है हमको। और पहले तो बहुत गंदा पानी आता था, बहुत ही ज़्यादा गंदा आता था, जंगली जानवर खराब कर देते थे, पत्तों से सड़ते थे, बहुत बदबू वाला पानी आता था। अब उतना बदबू वाला पानी नहीं आता है, फिल्टर से हमें साफ और स्वच्छ पानी मिलता है। हमारे यहाँ युवा मंगल दल भी है और महिला मंगल दल भी है, दोनों ही हैं। तो हमने मिलके, युवाओं ने भी, हमने भी, महिलाओं ने भी, दोनों ने मिलके बनाए, नए फिल्टर बनाए। और आप चाहेंगे और भी आगे भी फिल्टर? हाँ, बने तो चाहते हैं। The advantages of slow sand filter are simplicity of the design, construction and operation, enabling the application of locally available materials. The cost of construction is therefore relatively low. Operation and maintenance can be carried out by the villagers themselves. Another extremely important intervention made is towards the rejuvenation of traditional drinking water sources in the region. Efforts are made to revive and maintain these dying traditional wisdom of springs and nalas and chashmas in the region. Srot, nalas or chashmas, as known in Kashmir, are the main sources of water, providing life to the people in the region. Springs are the points at which groundwater comes into contact with the surface. A spring is the result of an aquifer being filled to the point that water overflows onto the land surface.
Efforts are also made towards the rejuvenation of Naulas and Chashmas of Kashmir. Naulas are designed to collect water from subterranean seepage or springs, where spring discharge is comparatively low and are used to meet drinking and other allied need of the local communities. Many such Naulas are rejuvenated or cleaned in the village of Chaukatia, Kumaऊं, Uttarakhand. हमारी इस पहाड़ की खूबसूरती के अनुरूप और ये सत्य भी है, जो जल है इसमें विष्णु का वास बताया गया है। इस नौले को आप देख रहे हैं, इस नौले के मई और जून में जब यहाँ का हाइस्ट 32 या 33 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब भी पानी की यही गरिमा रहती है। इसके अतिरिक्त जब हमारे गांव में शादियाँ होती हैं तो नई दुल्हन हमारे घर में आती है तो दुल्हन का जो दर्शन होता है इस विष्णु के वास से होता है। यहाँ पे वो नई नवेली दुल्हन आती है और अपने जो श्रृंगार को यहाँ पे समा जाती है और यहाँ से लोटे में या तांबे के घड़े में गंगा जल को लेकर घर में सास ससुर की शरण होती है और उस जल को ग्रहण करती है। और यानी कि विष्णु के वास में विष्णु की जो पत्नी थी वो लक्ष्मी थी और जो नई नवेली दुल्हन हमारे घर में आती है वो भी एक लक्ष्मी का रूप है और उस लक्ष्मी को दर्शन के लिए विष्णु के पास लाया जाता है ताकि वो उसी रूप में उसी लक्ष्मी और विष्णु के रूप में उस घर पर रहें और उस घर की उस मान मर्यादा को बनाए रखें। हमने अपने नौलों की साफ सफाई की, प्रदूषण दूर किया, गंदगी सब दूर हो जाती है। हमें स्रोत का पानी है, शुद्ध पानी मिलता है। अनेक कीटाणु हो जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। अनेक बार हर बार साल भर की 1-2 बार सफाई होनी चाहिए, उसमें और पाउडर होना चाहिए। सूट पे छेड़खानी नहीं की, किनारे से जो सब गंदगी हुई थी गंदगी साफ की और जो और झाड़ हुआ और चित्र निकाला, उसमें जो भी गंदगी थी वो साफ की और पुराना जो था और उसको नया करा और उसमें चूना लगाया और सब चारों किनार जो भी और गंदगी हुई थी झाड़ घास पड़ी हुई थी घास भी निकाली और अपने नौलों की सफाई अपने हाथ से की। पानी को हम विष्णु भगवान मानते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं और गंदगी होने में और सरपट होने में हमारे नौले में और सरसों भी निकलता है और बिना पूजा करके सरसों जाता नहीं है और नई नवेली दुल्हन आती है उसके दर्शन कराते हैं, वहाँ से जल लाते हैं, जल लेके अपने परिवार को पूरा परिवार को बांटते हैं और उसी दिन से हम नई दुल्हन के हाथ का पानी खाना शुरू करते हैं। Efforts have also been made in the villages of Sonadi, Tapad, Simkholi, Pokhari, Babri, etc. in the Kumaऊं region of Uttarakhand. नल के पानी से कई किस्म की बीमारियां हटती है। अगर हम नल के पानी पीते थे तो वहाँ से बीमारियां पैदा होने लगी, गंदगी ज़्यादा होने लगी, इसलिए नौले की ज़रूरत पड़ी हमें। तब हमने नौलों को ठीक किया। अब नौले में काफ़ी अच्छा पानी भी आ रहा है और हमें बहुत सुविधा हो रही है वहाँ से पानी लाने के लिए। एक नौला जब हमारे घर के सामने है, यहाँ हमारे 12-13 परिवार को मिलता है सुविधा उसमें से पानी, और जो हमारा बड़ा नौला है उसमें पूरे गांव को मिलता है। वहाँ दूर जंगल से लाए पत्थर को और हमारे मंगल दल द्वारा सहयोग मिला पत्थर लाने में और तोड़ने और उसमें तो मज़ेदार ही लगाए फिर हमने। और ये जो ऊपर का पत्थर है ये मकान के पत्थर थे किसी के, उनसे लिए फिर हमने ये। और नौल की चढ़ाई हर कोई आदमी नहीं करता है, एक कोई बाज़ लोग चढ़ाई करते हैं इसके, सभी नहीं तो मकान बनाने में तो कोई भी कर लेता है चढ़ाई। ये नौला बनाने में बहुत परेशानी होती है, तो 1-2 जने मिले हमें, उन्होंने बनाया ये। और अब नौला बना के अब पानी भी अच्छा हो रहा है इसमें। नौले का पानी ठंडा और शुद्ध ठहरा और नौले से हमें बहुत ठंडा पानी मिलता है यहाँ। और ऊपर बाँस का पेड़ है, बाँस के पेड़ से पानी निकलता है। चमसिया नौला ये मतलब आज से करीब 100 साल पहले का नौला है ये। अभी ये जीर्ण हालत में था कुछ, तो इसकी मतलब सफाई और मरम्मत कराएगी ना। और बिचार में आप पानी पीते हैं शुद्धता की वजह से हुआ और गंदगी मतलब नौले में जा रही थी, इसकी मतलब फर्श और नाली लिपाई पुताई मतलब इसका ये काम किया गया। और इसमें कम से कम 8-10 परिवार पानी पीते हैं इससे। तो यहाँ के महिला मंगल दल को हमने कहा कि आपके वहाँ गांव में पानी की गर्मियों में बहुत किल्लत रहती है, तो आप लोग किससे पानी पीते हैं? तभी उन्होंने बताया कि हम इन नौलों से पानी पीते हैं।
तो उनको हमने इनकी सफाई के प्रति और इनकी देखरेख के प्रति बहुत जागरूक किया। तो इधर इन महिला मंगल दलों ने इस नौले को बहुत अच्छा बनाया और सारे लोग हफ्ते में 15 दिन में और महीने में सफाई करते हैं नौलों की। इस नौले का नाम पार का सुनाड़ी नौला है और ये एक पूरी ग्राम सभा सुनाड़ी ग्राम सभा है। इसमें 3-4 गांव हैं, सुनाड़ी, तापण, पोखरी और बाबरी। तो इस पूरी ग्राम सभा में 9-10 नौले हैं। इन सभी को इन महिला मंगल दलों ने अच्छा किया है और वो खुद उनको लग रहा है कि हमें नौलों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाइपलाइन का पानी तो कभी भी बंद हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम इन नौलों को अगर अच्छे बनाए रखेंगे, इनके ऊपर वृक्षारोपण करेंगे, तो हमारे नौले से हमें हमेशा पानी मिलता रहेगा। These nolas, apart from being part of a rich cultural heritage of the region, are the primary source of safe drinking water. Local communities are made aware of the importance of these nolas and made to participate in the upkeep of these from time to time. Many more such efforts are being made and much more needs to be done. The Himalayas, though considered as the water towers of Asia, have the perennial problem of drinking water on their towering ridges and slopes. The valleys are fortunate because the surface or the subsurface water from the heights moves down to the valleys. Since time immemorial, the springs and structures like nolas and chashmas have been the mainstay of drinking water supply in the region. It is said that when Kalyan Chand, a king of Chand dynasty, shifted his capital from Champawat to Almora in 1560, apart from strategic location, availability of potable drinking water in plenty at the ridge top was one of the most important criterion. In the last few decades, the number of springs and nolas in the region has decreased drastically. The need is to make an effort at a much larger scale so that this traditional genius is prevented from dying.